Hello everyone, welcome to English with Evelyn. Today we'll study the story The Adventure from class 11 reader Hornbill, and it's a very interesting story. It's a science fiction written by Jayant Narlikar. He is an astrophysicist, and apart from writing in science journals and scientific papers and all, he's also written science fiction and novels and Hindi and English and Hindi, Marathi short stories. And you'll be happy to know that he's also the consultant for the science and mathematics textbooks of NCERT. So, the part of the story that you have in your syllabus is the second part of this story. The story begins with the protagonist, Professor Gaitonde, who is getting to know catastrophe theory, and Professor Deshpande, a young physicist, he tells him that catastrophe theory can have its implications on history as well. So, Professor Gaitonde is a very famous person and he keeps going for different conferences and all. So, he's about to go to uh, a thousandth presidential address to Panipat, where he would be speaking on the Third Battle of Panipat. And since he has come to know about catastrophe theory and the hints that it could have some implications on history, he is deeply engrossed in the question what could have happened if the Battle of Panipat, instead of being the losers, if the Maratha army had won the battle. What course would history have taken? What implications would it have had on the history of India? Now, when he is thinking, he is hit by a truck, and then um, after a series of other events that happens, okay, the events that happen, he finds himself in a hospital. He wakes up after 3 days. The date is correct, but the place seems very strange to him. ठीक है, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि ये लोग कैसे बात कर रहे हैं, ये वाई आर ये चेंज ऑफ गार्ड्स क्यों हो रहा है ना. सो द डॉक्टर सजेस्ट दैट यू शुड गो टू बॉम्बे. आई थिंक आप जो भी बात कर रहे हो, जो जगह की बात कर रहे हो, बॉम्बे की बात कर रहे हो, है ना. और जब ये बॉम्बे के लिए अपना टिकट लेते हैं तो इनको ये पता चलता है कि पेशावर भी इंडिया में ही है. तो इससे इनको और एक इनको अपने वॉलेट में एक पीस ऑफ पेपर मिलता है. उससे इन वो पढ़ते ही इनकी मेमोरी पूरी वापस आ जाती है. इनको समझ में आता है कि 3 दिन क्या हुआ था, है ना. इनको वो सब चीज़ याद आ जाती है. ठीक है, अब ये और इसके बारे में जानने के लिए कि ये सब चेंज क्यों हुआ, है ना, इसके बारे में जानने के लिए ये जाते हैं बॉम्बे. और बॉम्बे जाते हैं जीजा माता एक्सप्रेस से. तो यहीं से स्टोरी शुरू होती है. ठीक है, अब नाउ ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन बॉम्बे, जहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो रही है. और आपको पता है बॉम्बे इनको लगता है जैसे बहुत कुछ इंग्लैंड की तरह ही है. एंड ही सरप्राइज टू सी दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी इज स्टिल देयर. And in this different Bombay, then he goes to the town hall, and then he realizes, in the train also, during his conversation with Khan Sahab, and in the history books also, he comes to know a lot of things which he otherwise did not know. And he looks at the books that were written by him. He looks at the 5 volumes which were written by him. लेकिन वो स्टाइल उनका था, लेकिन वो हिस्ट्री उनके लिए नई थी. मतलब वो जो 5th वॉल्यूम में जो हिस्ट्री थी वो उनके लिए नई थी. बाकी 4 वॉल्यूम्स ठीक थे. अब अकॉर्डिंग टू दिस 5th वॉल्यूम, इसमें चेंज क्या होता है ये देखते हैं. कि अभी तक की हिस्ट्री तो सेम है, तो कहीं ना कहीं तो एक टर्निंग पॉइंट आया है हिस्ट्री में, है ना. तो वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आया है. तो ये जब हिस्ट्री बुक को पढ़ते हैं, अपनी बुक को ही दोनों तरफ से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑल्सो एंड फ्रॉम द एंड ऑल्सो, ताकि इनको पता चले कि वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आया हिस्ट्री में. तो इनको रियलाइज होता है द पॉइंट वे हिस्ट्री हैड चेंज्ड वाज द बैटल ऑफ पानीपत. नाउ what had happened, the result of the battle was completely different. In this battle, the Marathas had won.
तो अब ये जानना चाहते हैं कि मराठास ने जीता कैसे, है ना। तो इनको ये पता चलता है कि एक जो मराठा आर्मी थी उसमें विश्वास राव की डेथ हो गई थी. ही वॉज किल्ड बाय अ बुलेट, बट हियर द बुलेट मिसेज हिम. ठीक है, ये ऑल्टरनेट रियलिटी में ये हुआ है, बुलेट उनको छू करके भी नहीं गई, है ना. इट जस्ट विज्ड पास्ट हिज ईयर. और इससे मराठा आर्मी में बहुत जोश आ गया और मराठा आर्मी जीत गई. अब क्योंकि मराठास जीत गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्लान्स थे इंडिया को डिवाइड करने के, वो उनको प्लान्स अपने सारे छोड़ने पड़े. दोज प्लान्स हैड टू बी शेल्व्ड बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड दैट द मराठास आर हियर टू स्टे. द मराठास हैव बिकम अ वेरी पावरफुल rulers here. So because they have become a powerful force and very powerful rulers, they had to shelve their plans and they remained as the merchants that they had come. ठीक है. और इसके अलावा क्या हुआ, इंडिया की हिस्ट्री में क्या चेंज आया. देयर वॉज नो रेवोल्यूशन ऑफ 1852. जब वो नहीं हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी यहाँ से बाहर नहीं गई. ईस्ट इंडिया कंपनी यहीं रह गई एज अ मर्चेंट कंपनी. फिर फ्रीडम भी नहीं हुआ, पार्टीशन भी नहीं हुआ. जब पार्टीशन नहीं हुआ तो पेशावर वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो यहाँ तक अब उनको समझ में आया. नाउ he wanted to know how is it that the Marathas had won the battle. हुआ क्या था, क्योंकि उनका जो हिस्ट्री के नॉलेज थी उनको तो ये पता था कि विश्वास राव वॉज किल्ड इन द बैटल एंड द मराठास हैड लॉस्ट द बैटल. सो ही टेक्स आउट द बाहू साहेबाची बाकर. ये बाहू साहेबाची बाकर जो होती है ना, ये किंग के टाइम पर ही लिखा हुआ अकाउंट होता है. उनके ही जो लोग होते हैं, जो कोर्ट पोएट्स होते हैं, वो लिखते हैं. तो इट इज़ नॉट टेकन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस because people know that because people have been, the poets have been commissioned to write. तो इसमें सब कुछ सच नहीं होगा, ये किंग को ग्लोरीफाई करने के लिए होगा. लेकिन फिर भी वो बाहू साहिबाची बाकर लेते हैं और उससे पढ़ते हैं तो उनको समझ में आता है कि विश्वास राव को गोली लगने की जगह विश्वास राव बच गए थे गोली से और इस वजह से द मराठा आर्मीज मोरल वाज बूस्टेड. इस बीच लाइब्रेरी का टाइम ख़त्म हो जाता है तो वो अपने सारे नोट्स उठाते हैं, अपनी पॉकेट में रखते हैं और वहाँ से आ जाते हैं लाइब्रेरियन को ये बोल के कि कल मैं फिर आऊँगा और स्टडी करने के लिए. अब उसके बाद क्या होता है, जब वो कहीं पे खाना खाते हैं और पैसे देने वाले होते हैं तब उनको समझ में आता है अच्छा ये पैसे भी ना जो उनके पुराने करेंसी नोट्स थे वो यहाँ नहीं चल रहे थे. ठीक है, इनको जो डॉक्टर थे, इनको जो पूना में जिन्होंने ट्रीट किया था, उन डॉक्टर ने इनको नए नोट्स दिए थे. उनको ये कह के दिया था जो आपके पास जो नोट है ना जिसपे गांधी जी बने हुए थे, ठीक है, उन्होंने कहा ये वाले नोट्स तो मोनोपोली खेलने के लिए ठीक है, मैं आपको नोट देता हूँ. तो ऑब्वियसली जो उस वाले ऑल्टरनेट रियलिटी के जो नोट्स थे वो उससे उन्होंने पेमेंट किया और फिर उन्होंने रियलाइज़ करा कि भाऊ साहिबाची बाकर तो मैं अपनी जेब में रख लेके आया हूँ. सो इनएडवर्टेंटली ही हैड पुट इट, यू नो, ही डिड नॉट डू इट बाय design, है ना. He did not want to take it from there without permission, but as it happened it remained in his pocket and he thought I'll return it to the library tomorrow. So after a meal he went for a stroll towards the Azad Maidan and then he saw that there was a lecture going on at Azad Maidan, and whenever there is a lecture going on there's someone who presides over the lecture. But here the seat is vacant and he has never seen an extraordinary thing like this, that a presidential chair is vacant and somebody is giving a lecture. So he went and he wanted to sit on the chair, but the person who was giving the lecture, he says that no, we have done away with that system, please don't sit on the chair. So it turned out that in this world people were fed up of long speeches and people had abolished the presidential chair system. I mean, the presidential chair is there but nobody sits on it. And because he came and he told the people that no, this chair cannot remain vacant, तो इस वजह से क्या हुआ, लोग उनको भगा देते हैं वहाँ से and they started throwing things at him and suddenly the professor vanishes from there. Now
Later on, he was found in the Azad Maidan in his familiar world. But where had he been for 2 days? This remained a mystery because he's in Azad Maidan and people question him. So people take him to his son's house, and all this is also not given in your story, but this is how it happened in the story. Ki now he comes back to Pune after his son had taken care of him. He comes back to Pune, and then he is talking to Rajendra Deshpande about this whole incident that happened. He said, this is what I saw in Bombay, and this is what had happened. So in the beginning, Rajendra Deshpande is not willing to believe him. Okay, he thinks that maybe because you were hit by the truck, maybe you were having these hallucinations. तो ये क्या बताते हैं उनको, वो जो भाऊ साहेबाची बाकर थी उसका टुकड़ा बताते हैं. तो इससे राजेंद्र देशपांडे को विश्वास होता है कि जो प्रोफेसर गायतोंडे बोल रहे हैं ये सच है. वहाँ पे एविडेंस है कि विश्वास राव हैड मिस्ड द बुलेट, एंड सो ही सेज दैट द वर्ल्ड दैट आई सॉ, in that world, something completely different had happened. And history was different. India was never a slave. India had turned into a democracy, but the impact of the Peshwas was there. The 20th Mughal ruler is ruling over there. So all of these things had happened. ठीक है, इसमें से बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आपके बुक में नहीं है. जो आपके बुक में है वही डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर करे हैं स्टोरी में से. ठीक है, तो in our world that we know, okay, and Professor Gaitonde knew, and Professor Rajendra Deshpande knew, the Marathas had not won, the East India Company had not flourished, and the East India Company had been asked to leave, and the British Empire had taken over, and India became a colony of the Britishers, and India had to fight for their freedom, and therefore the partition took place. So the history had completely changed from the result of the third battle of Panipat. अब ये प्रोफेसर देशपांडे से पूछते हैं कि ये हुआ क्या है ना. वॉज आई टाइम ट्रैवलिंग, वॉट इज इट, बिकॉज उनको लगता है टाइम ट्रैवल तो नहीं कर रहे थे, डेट तो वही थी. तो प्रोफेसर देशपांडे उनको समझाते हैं क्वांटम थ्योरी, कैटास्ट्रोफी थ्योरी. ये उनको समझाते हैं कि इफ अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इन अ गिवन डायरेक्शन एट अ गिवन स्पीड, वन विल नो वेयर इट विल बी एट एनी टाइम, है ना. क्योंकि आप कैलकुलेशंस करके आप पता कर सकते हैं ना, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं फॉर्मूला से. लेकिन इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है, और ये ही क्वांटम थ्योरी का बेसिस है. सो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज फायर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स, इट मे बी हियर, देयर, एनीवेयर. दिस इज द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी. यही बताते हैं, इसी के बेसिस पे ये बोलते हैं कि रियलिटी इज नेवर वन साइडेड. An alternative world may exist at the same time, and this at a crucial point of time, at a turning point, this the result can be can go any other way, okay, and the reality bifurcates from here. और इसी तरह से reality हर important point of history में bifurcate हो जाती है. ठीक है, तो ये इस तरह से उनको समझाते हैं. अब बिकॉज थ्रू दीज डिस्कशंस प्रोफेसर गायतोंडे एंड राजेंद्र देशपांडे दे केम टू द कंक्लूजन दैट देयर कुड बी मेनी डिफरेंट वर्ल्ड्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, एंड दे कुड ऑल हैव अ डिफरेंट हिस्ट्री. So with this they come to the conclusion that Professor Gaitonde had been to another world, and the time was the present but the history was completely different. And how did this happen? ये ऐसे कैसे चेंज हुआ? क्योंकि जिस वक्त वो सोच रहे थे इसके बारे में, ही वॉज हिट बाय अ ट्रक, एंड दैट वर्कड एज अ कैटलिस्ट and shifted him into the other world. Okay. Now, according to this theory, small changes in circumstances lead to a sudden shift in behavior, and so the entire history after that point of time changes. ठीक है, तो ये था पूरी जो स्टोरी है उसका जिस्ट.
अब इसमें इन्होंने एक्सप्लेन क्या करा है, ठीक है, ये बहुत इसको गहराई से समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो बुक में दिया है वो ये समझाया है कि प्रोफेसर गायतोंडे उसी वक्त पे ट्रांजिशन उन्होंने करके दूसरे दूसरे वर्ल्ड में क्यों चले गए, तो और वहाँ से वापस भी कैसे आए, है ना, दोनों ही बातें हैं। तो ये बताते हैं कि इंटरेक्शन के बारे में जिस वक्त सोच रहे थे उसी वक्त एक्सीडेंट हुआ। तो when the collision took place, Gaitonde was thinking about the catastrophe theory and its role in the wars, and especially because he was about to go to Panipat to talk about the battle of Panipat, तो ये सोचने लगे अगर ऐसा ये थ्योरी अप्लाई करते हैं हम, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के कॉन्सिक्वेंसेस अगर कुछ और होते तो क्या होता हिस्ट्री में। So this interaction in his brain, this acted as a trigger to cause a transition. And again, when the confusion at Azad Maidan took place, that also acted as a trigger, and he came back to reality. See, so this is the explanation of the story of the adventure. ठीक है. Now the commonly asked questions in this story is the questions are that what were the differences that Professor Gaitonde noticed between the India that he knew and the India that he saw in the other world. ठीक है. The second could be that what was the describe the new country that he saw. तो उसमें आपको बॉम्बे और बॉम्बे की स्ट्रीट्स और वो सब जो बुक में दिया हुआ है ना, वो आपको डिस्क्राइब करना होगा. इसके बाद में और एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि why do you think पेशावर, Khan Saab was going to Peshawar by the same train मतलब he would take another train, but how could he go to Peshawar, है ना, and why was he speaking so normally about all of this. तो इसमें आपको बताना होगा, अपना अप्लाई करना होगा ये वाला नॉलेज की पार्टीशन नहीं हुआ है, इसलिए पेशावर इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ इंडिया. फिर आपको ये बताना होगा कि वाई वर देयर यूनियन जैक्स ऑन द ट्रेन कंपार्टमेंट्स व्हेन ही वाज अप्रोचिंग बॉम्बे, क्योंकि वो ब्रिटिश टेरिटरी थी. ठीक है. और फिर व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन, ये जो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन किया है, व्हाट वाज द एक्सप्लेनेशन दैट प्रोफेसर देशपांडे गेव टू प्रोफेसर गायतोंडे, ठीक है, फॉर द ट्रांजिशन. फिर आपको बैटल के बारे में क्वेश्चन हो सकता है ना, हाउ वाज द आउटकम डिफरेंट एंड व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज डिड इट हैव ऑन हिस्ट्री. फिर ये भी हो सकता है कि हाउ डिड द पेशवाज इन द अदर वर्ल्ड, हाउ डिड द पेशवाज बिकम पावरफुल, why did the East India Company lose their control. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस इस स्टोरी के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं, लेकिन कोर क्वेश्चन जो साइंस के जैसे हैं वो नहीं पूछे जाएंगे कि ये क्वांटम थ्योरी क्या है या कैटास्ट्रफी थ्योरी के डिटेल्स, ये सब नहीं पूछा जाएगा. स्टोरी से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वही पूछे जाएंगे. ठीक है. So with this I come to the end of this video. I hope you have enjoyed watching the video, as well as you'll find it useful. And after watching this video, if you read the story, I'm sure you'll find it easy to understand. Bye bye. Thank you so much for watching.